Trying to do everything gets you to do nothing. पर उसके साथ stress, confusion, insomnia बढ़ ही जाता है. The lesson that I learned in my second year was experimenting with everything is not curiosity. Sometimes it is just fear of committing. And I'm telling you this because हम सबका एक पढ़ने का तरीका होता है. But when you start to add too many elements into it कि मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, इसके बाद वो करना है, because there are so many resources out, you start to fear of missing out. And that is what exactly you shouldn't have if you want to enjoy your studying. And we will cover that in this video, how to study efficiently and to have a workflow that really works. पर उसके साथ साथ lot of people tell कि रॉबिन्स को NCERT की तरह पढ़ना चाहिए, which I don't think is feasible and not the very efficient way. We'll come together. पहले हम वर्कफ्लो देखते हैं. वर्कफ्लो में क्या है देखिए, अभी you will get your posting for the first time. You'll go there, stand for 3 hours. Sometimes you don't have your breakfast, and you have also give your time for your hobbies. And then it is becoming difficult for you to give time to second year subjects. And this is what I exactly faced in the initial 3 months. For that, we should have a workflow that is reliable and easy to accomplish so that we'll be consistent and not perfect. So during your classes, you can divide it into pre-class, during the class, and after the class. So before the class, it is not possible to go through the entire chapter. So what you can do is do a picture walk. रॉबिन्स खोलो, जो चैप्टर पढ़ाई होने वाला है उसके बस डायग्राम्स देख लो, उसके बस फ्लो चार्ट्स देख लो. इफ यू जस्ट डू दैट मच, यू हैव अ वेग आइडिया अबाउट द टॉपिक. आपको थोड़ा ना थोड़ा पता है, थोड़ा लाइक यू कैन जस्ट कनेक्ट द डॉट्स. व्हेन यू गो टू द क्लास, यू वोंट बी एम्प्टी. खाली दिमाग लेके नहीं जाओगे कि कुछ ही समझ नहीं आ रहा. यू विल हैव समथिंग, सो दैट विल वर्क and you'll feel more comfortable because everything now will seem foreign to you, like anatomy used to feel when in first year. But abhi you'll have introduced to terms like neoplasia, anaplasia, and all these new terminologies will haunt you. So listen to the class, thoda sun lo, and also because the professor there will give you and will tell you what is important, what will come in the prop exam, right? And what you should do after the class is that you should complete it in a chapter wise or in a system wise, whatever comfortable to you, but you should do the lecture first, any platform, then go through the notes. You can do the ready-made, handmade, I don't care, it depends on you. Because what I personally feel is that आप कहाँ से नोट्स, मतलब कैसे नोट लिखते हो उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप कितनी बार रिवाइज करते हो उसको. और अगर आपका मेरे जैसा हैंड राइटिंग है तो फिर आई वोंट सजेस्ट टू डू हैंडमेड, बिकॉज मैं खुद ही नहीं समझ पाता हूँ मैं क्या लिखता हूँ कभी कभी. सो इट डिपेंड्स, आपको जैसा कंफर्टेबल हो. देन यू कैन गो टू द बुक आफ्टर द लेक्चर्स एंड नोट्स. यू कैन गो टू द बुक. अभी बुक कैसे पढ़ना है वो एक आर्ट है, उस पर हम डिस्कस करेंगे. आई विल एम्फसाइज ऑन दैट. देन आफ्टर द बुक यू कैन गो टू द क्यू बैंक एंड देन यू शुड एनालाइज आपने जो पढ़ा वो आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं, आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है, आपके कहाँ पे आपको समझने में प्रॉब्लम आ रहा है. यू कैन मेक ए माइंड मैप ऑल्सो. सो द गोल इज टू फाइंड योर वीकनेस, the high yield topic that are asked in the exams, the volatile part or the gene list. Because if you know this, then you can have mnemonics. अगर याद करने के लिए कुछ difficult है उसके लिए mnemonics बना लो, जो high yield है उसको mark करके रख लो. You can do that. But more important than that is plan your revision. आप एक बार चीज़ पढ़ लेते हो ना, आपको कहीं पे उसको planning करना पड़ेगा कि उसको revise कब करना है, और कब करना है से ज़्यादा important है कैसे करना है. कैसे करना है in the sense when the next time will be revise. आपको आप पूरा तो रिवाइज नहीं कर सकते ना. जैसे आपने आपका जो वर्कफ्लो था, पहला वर्कफ्लो लेक्चर, नोट्स, बुक, यू कैन नॉट डू दैट अगेन. ट्राई टू हैव परफेक्ट रिविजन्स. जस्ट रिवाइज, रीलुक. इवन सिंपल थिंग्स विल वर्क. देन हाउ टू स्टडी रॉबिन्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस वीडियो. तो रॉबिन्स आपका बेसिकली अगर उसको तोड़ दिया जाए ना, इट इज जस्ट 30% स्टोरी, 30% फैक्ट्स एंड 40% कॉन्सेप्ट्स. आपने इसके पहले लेक्चर और नोट्स देख लिए ना, सो दैट 30% फैक्ट्स वो ऑलरेडी नोट्स में कवर है. आपको जो एट द एंड ऑफ द डे याद रहना चाहिए, जो मेमोराइज रहना चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए, सवाल लगाने के लिए, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द नोट्स. यू नीड नॉट वरी वाइल रीडिंग द रॉबिन्स अबाउट द फैक्ट्स, अबाउट द एग्जाम्पल्स, अबाउट द जीन लिस्ट. उसको देख कर डरना नहीं है. एंड द स्टोरी इज जस्ट कॉम्प्लेक्स इंग्लिश. आपको यू शुड हैव अ पर्पस बिफोर डूइंग एनी रिसोर्स. यू शुड हैव अ पर्पस कि आपको उसके बाद या उससे लेना क्या है. With Robbins, you have to get the concepts only. आपको concepts connect करने हैं.
That is your objective. So as an example, I'm giving this example कि आपका जो hallmarks है कैंसर का, you can see there are genes here, इतने सारे genes दिए हैं. If I go look at that, it is not gonna work and I'm not gonna finish the chapter in the in the given time frame. फिर मेरे को खुद को anxiety होगा कि मैं इतने टाइम में ख़त्म नहीं कर पाया, फिर I have to do pharmacology also, then there will be procrastination. And also one more mistake I see, even I used to make it, कि मैंने नोट्स पढ़ने के बाद मेरे को पता है कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं रॉबिन्स का खाली ऐसे इंपॉर्टेंट वाला जो लाइन्स है उसको खाली टिक करता था कि सेल्फ सफिशिएंसी वाला नोट्स में है. सो जो नोट्स में मैंने उसको हाईलाइट करने का ट्राई किया, बट द पॉइंट वाज नॉट दैट. नोट्स में वो चीज़ ऑलरेडी है, मेरे को वो नोट्स में जो चीज़ें उनको कनेक्ट करना है, उन पर कॉन्सेप्ट बनाना है, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव. तो मेरे को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, पर मेरे को इस इंटेंशन से नहीं पढ़ना है कि मेरे को सब कुछ याद रखना है. मेरे को एकदम स्टोरी बुक की तरह इंजॉय करते हुए पढ़ना है. तो रॉबिन्स को एकदम प्यार से पढ़ो, यू जस्ट इंजॉय, लिव थ्रू दैट मोमेंट, बिकॉज इफ यू रीड इट इन अ स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट और स्ट्रेसफुल ऑब्जेक्टिव, यू वॉन्ट अकॉम्प्लिश योर गोल. तो इसीलिए मैंने कहा इट इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइक रीडिंग एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी में आप कवर टू कवर पढ़ते भी हो और आप उसको याद भी रखते हो, पर यहाँ पे वो नहीं करना है, यहाँ पे आपको समझना है. क्योंकि देखो नोट्स में एवरीथिंग इज गिवन, ऑल द जीन्स वट एवर यू नीड टू रिमेंबर इट इज़ गिवन. सो वट यू शुड डू वाइल रीडिंग रॉबिन्स इज, पहले डायग्राम्स देखो, डायग्राम्स देख के सेंस बनाओ, फिर सारे लाइन्स पढ़ो लाइन टू लाइन, कॉन्सेप्ट सारे स्टोरी बुक की तरह. जस्ट ट्राई टू मेक सेंस. व्हेन यू आर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मार्क इट विद द पेंसिल. फॉर द सेकेंड टाइम, मार्क इट विद द हाईलाइटर. पर जब आप हाईलाइटर से मार्क करोगे तब मार्क इट अकॉर्डिंग टू द PYQs, ताकि आप वापस आके देख सको. देन आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने. आई हैव गिवन हियर ए लिस्ट. आप देख सकते हो कौन से मस्ट रीड है, मे रीड है, यू कैन रीड. बट देर आर 3 चैप्टर्स आई विल से देर इज नो कॉम्प्रोमाइज. यू हैव टू और यू मस्ट रीड line to line. That is the cell injury, inflammation and neoplasia. These 3 chapters you should read line to line, because these are the fundamental of pathology and this will make your concepts. It will make everything easy. सारे chapters में ये सारी चीज़ें repeat होंगी. And why I'm saying that is because ये chapters में आप जो जनरल पैथोलॉजी, यहाँ पे आप कुछ टर्मिनोलॉजी सीखते हो, कुछ वर्ड सीखते हो. अगर आपको ये सब वर्ड्स ही नहीं पता तो आप ये सेंटेंसेस कैसे बनाओगे सिस्टमिक पैथोलॉजी में, राइट? आपने अभी सीखा इन्फ्लामेशन, आपने भी सीखा थ्रोम्बोसिस, उसका मतलब क्या है आपको पहले वो जानना है, फिर जाके आप उसका सेंटेंस बना सकते हो कि थ्रोम्बोसिस लीड्स टू नेक्रोसिस इन इस्केमिक टिश्यू और क्रोनिक इन्फ्लामेशन कॉज एट्रोफी. सो वट एवर दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर, यू विल ओनली एबल टू डू आफ्टर यू नो द मीनिंग, द ट्रू मीनिंग और डेफिनेशन in general pathology, which will make the systemic pathology easy. And once you have both of these things, once you make the sentence, you'll able to analyze and logically convert them, and you'll be fluent in it, which is required in medicine, right? So I will give this in my Telegram channel, all of the topic wise must read important topics of Robbins. I will provide it to you. And this was it about this series, and we will meet each other again in the next video, which will be about pharmacology. Thank you. Prakash Pahadi signing off.